A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So as you already know that we have already completed the whole syllabus of your economics, microeconomics as well as statistics for economics. Okay. So in previous few classes we will continuously revise the chapters basically from the statistics for economics. So in today's class again we are going to solve some numerical questions of the chapter index number. So let's get started. Okay, so let's do a one numerical questions or few numerical questions of Lespier method, Paasche method and the Fisher's method. Okay, so the question is here: from the following data, calculate price index for the year 2008 taking 1997 as base year. Okay, so you have to calculate price index by Lespier's method. Second is Paasche method. Third is Fisher's. Okay, so question is here: commodity 1997 and 2008. Here P0, Q0, P1, Q1. Okay. In the question, all the information is already given. Price of the base year, quantity of the base year, price of the current year and the quantity of the current year. Okay. A, B, C and D. A is 20, 50, 40 and 20. And the quantity is 4, 3, 5, 10. P1 is 40, 60, 50, 40. Price quantity is 6, 5, 10 and 20. Okay. Now you have to calculate some values. Okay. So first you have to calculate the P1, Q0, P0, Q0, P1, Q1 and P0, Q1. You have to calculate all these values. Sorry. P1, Q0, P0, Q0, P1, Q1 and P0, Q1. Okay. So you have to calculate. So you have time. I am giving you some time. So you have to calculate all these values. P1 and Q0. Multiply all these two. Then P0, Q0 means this one and this one. Multiply both. P1, Q1, P1, Q1 this one and the P0, Q1. P0 and Q1. Multiply all these values. After that I will tell next step.
You have to calculate, okay? Then it is very, so it is simple. So you have to only multiply all these values. And P1, P0, Q1, Q0 is already given here. So multiply it. Okay, so let's do P1, Q0. This one. 160, 180, 150, 40 into 10, 400. Right? So P1, Q0 equal to, बताइए क्या होगा, इसको सम करिए. Then P0 and Q0, this one. 20 into 4, 80, 50 into 3, 40 into 5, 200, 20 into 10, 200. Now sum P0, Q0. Next one is P1, Q1. 6 4 ja 24, 6 5 ja 30, 500. Next you have to do P1, Q1. Calculate it. Then P0, Q1. P0, Q1. 120. This one and this one. 150. 400. 400. Okay. Now sum all these values. Sum करिए इनका. P0, Q1. इसको सम करिए क्या आएगा. ये देखिए आपका क्या हो गया 0. Then 19, 1, 4, 5, 6. It will be 250. Sorry. 5 5 ja 25. 4 to 6. 7 8 9 990 हो गया आपका. नेक्स्ट है आपका क्या 80, 150, 200, 200. ये हो गया आपका 400 और ये 150 प्लस 80 हो गया आपका 230. ये हो गया आपका 630. राइट. नेक्स्ट है आपका, इसको सम करिए. ये हो गया 8, ये 8 कितना हो गया आपका 16, 18, 40. नेक्स्ट है आपका, ये हो गया आपका 0, 7, 4 plus 4, 8, 9, 10 and 11. 11. Right? Now you get the value of P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1 and P0 Q1. आपको ये वैल्यू पता चल गई. Now you have to put only the values of these on this method. So whatever the formula of Lespier, Paasche and Fishers, you have to put all these value on this, on that method or the formula. So you get the values of the Lespier price index from the Lespier method, Paasche method and the Fishers method. Okay. So first of all we will do the Lespier method. Lespier method. Okay. So formula is P01 equal to summation P1 Q0 upon summation P0 Q0 into 100. Right? P1 Q0 upon P0 Q0 into 100. तो इसकी वैल्यू क्या है ये आपकी 990 डिवाइडेड बाई 630 इंटू 100. इसको कट करिए. वैल्यू क्या है इसकी ये हो गया आपका
3 3 7 जा, ठीक है, ये हो गया आपका 1100/7। तो द वैल्यू क्या आ रही है इसकी 157.14। इसकी क्या वैल्यू आ रही है 157.14। ये आपका क्या हो गया, बाय द लेस्पियर मेथड यू गेट द वैल्यू ऑफ द प्राइस इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, आपको नेक्स्ट मेथड है पार्शियल मेथड। पार्शियल मेथड का फॉर्मूला क्या है, P01 इक्वल टू समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 इंटू 100। P1 Q1 P0 Q1, ओके। तो ये क्या है, P1 Q1 आपकी वैल्यू कितनी आई है 1840 अपॉन P0 Q1 कितना है 1170 इंटू 100। इसकी वैल्यू लाएंगे तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 157 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है, 26। तो आपको दो वैल्यू पता चल गई, प्राइस इंडेक्स की वैल्यू पता चल गई बाय द बोथ मेथड, दैट इज लेस्पियर मेथड एंड दी पार्शियल मेथड। थर्ड है आपका थर्ड वन इज फिशर्स मेथड, ठीक है। फिशर्स मेथड का मैंने क्या बताया था कि ये फिशर्स मेथड क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, दोनों मेथड का। कौन कौन से मेथड का, लेस्पियर मेथड का एंड दी पार्शियल मेथड का। इन दोनों का क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें बेसिकली क्या होता है ये है, वेट अ मिनट, आई विल रब ऑल दीज। So from the both method, Lespier method and partial method, we have calculated the value of the price index. And next, we are moving to the next method, that is Fisher's method. Okay. So Fisher method, as we already told you, that it is the combination of the both. The first one is Lespier and the partial method. Okay. So I have not rub all these value because from this we have calculated the Fisher's method, price index from the Fisher's method. Okay. So third one is Fisher's method. Okay. So in the Fisher's method, summation P1 Q0 upon summation P0 Q0 into summation P1 Q1 upon summation P0 Q1 into 100, राइट। अब आपके पास क्या है, या तो आपको क्या है, आप इन दोनों की वैल्यू रखो ऐसे 990 अपॉन 630 इंटू 1840 अपॉन 1170, ये अंडर रूट है आपका इंटू 100, ठीक है। ये आपको पता चल गया है कि जब ये 100 था तो इसको हम लोगों ने 157.14 कर दिया। अब जब 100 है बाहर है तो हम इसको क्या ले लेंगे 1.57, ठीक है, 5714, क्योंकि आगे की वैल्यू तो हम लोग ले लेते हैं। और इसकी वैल्यू हम लोग क्या लेंगे 1.5726। ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उस टाइम हम लोग ने क्या किया था, 100 से मल्टीप्लीकेशन किया था, तब हम लोग क्या लेकर आ रहे थे 157.14। बट अभी 100 ये हम क्या कर रहे हैं, बस इन दोनों का डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी, और 100 तो अभी बाहर है, ठीक है, इंटू 100 ये आपका बाहर है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन so the next topic is weighted average of the price relative method. Okay, so in this method the price relatives of the current year are calculated. So price relatives are the calculated on the basis of base year prices. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका weighted average of the price related method. Weighted average of price
relative method. Okay, so in this method price relative of the current year are calculated. ठीक है, इस मेथड में क्या होता है बेसिकली, इस मेथड में होता है कि जो बेसिस जो है कैलकुलेट करने का बेस ईयर का, वो क्या होता है, करंट ईयर का कैलकुलेट होता है. जो प्राइस रिलेटिव हम करते हैं वो करंट ईयर का कैलकुलेट होता है. प्राइस रिलेटिव आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर प्राइस. ठीक है, जो भी हम प्राइस ईयर कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर प्राइसेस, जो भी बेस ईयर का प्राइस है उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, प्राइस रिलेटिव को कैलकुलेट करेंगे. सो वी नीड टू कैलकुलेट वेट्स. हमें क्या करना पड़ेगा, वेट को कैलकुलेट करना पड़ेगा. वेट को हम डेनोट किससे करेंगे, डब्ल्यू से. ठीक है, डब्ल्यू से इसको डेनोट करेंगे. अगर क्वेश्चन में क्या है कि नहीं दिया रहेगा तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा. एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ वेट एंड द प्राइस रिलेटिव एंड देन द एवरेज इज कैलकुलेटेड. फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे किसका, वेट का और प्राइस रिलेटिव का. उसके बाद क्या करेंगे, हम इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स. इसके क्या है, फॉलोइंग स्टेप्स है, उनको फॉलो करके हम इसको कैलकुलेट करेंगे. सो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द प्राइस रिलेटिव फॉर द करंट ईयर. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके स्टेप्स देखिए. हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्राइस रिलेटिव, प्राइस रिलेटिव्स फॉर द करंट ईयर, फॉर द करंट ईयर. करंट ईयर का हमें प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा. मतलब आर, उसको हम लोग बोलते हैं आर और पी आर. सो पी आर इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100. ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहला स्टेप आपका हो गया कि प्राइस रिलेटिव जो है करंट ईयर का कैलकुलेट करेंगे, विच इज डिनोटेड बाय द आर और द पी आर. पी आर इक्वल टू दी, पी आर इज प्राइस रिलेटिव और इसको हम लोग रिलेटिव भी बोलते हैं. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या है कि प्राइस क्या होगी आपके पास, करंट ईयर की प्राइस दी होगी, उसको हम डिवाइड करेंगे प्राइस ऑफ द बेस ईयर इनटू 100. इससे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, प्राइस रिलेटिव. फिर कह रहा है वी नीड टू कैलकुलेट द वेट. सेकेंड हमको क्या है, कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट वेट. ठीक है, वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा. इफ कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा वेट का कब, जब क्वेश्चन में नहीं है. अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी वेट का एक कॉलम दिया हुआ है जिसमें क्या है कि वो मतलब ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है, तो हम उसको उस केस में नहीं करेंगे. अगर नहीं दिया रहेगा तो हमें वेट को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो वेट आर कैलकुलेटेड बाय द फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइस ईयर ऑफ द बेस ईयर एंड द क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर. अब हमें डब्ल्यू को, मतलब इसको वेट कैसे डेनोट होगा, डब्ल्यू. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डब्ल्यू को कैलकुलेट करने के लिए प्राइस ईयर ऑफ द बेस ईयर एंड द क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर, उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. दैट मीन्स P0 Q0, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर, सो दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ द वेट. हम वेट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ वेट एंड प्राइस रिलेटिव, दैट इज R इंटू W, RW. नेक्स्ट हमारा क्या होगा, हमें प्रोडक्ट किसका फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट ऑफ रिलेटिव एंड वेट. ठीक है, हमें इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. दैट इज R इंटू W विच इज इक्वल टू R. ठीक है, देखिए, अच्छा पहले देख लेते हैं फिर करते हैं. देन वी फाइंड द सम टोटल ऑफ वेट. फिर जैसे ही W कैलकुलेट हो जाएगा हम उसका क्या करेंगे, सम टोटल ऑफ वेट. सम टोटल क्या करेंगे, वेट का कैलकुलेट करेंगे. दैट इज समेशन W. समेशन W फाइंड आउट करेंगे. We use the following formula to find the weighted average of the price relative. अब हम लोग क्या है, ये फॉर्मूला को यूज करेंगे वेटेड एवरेज के लिए. मतलब
P01 कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, समेशन RW अपॉन समेशन W। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होगा प्राइस रिलेटिव ऑफ द वेटेड मेथड का, जिसमें हमें क्या करना है कि बेसिकली हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द बेस ईयर प्राइस पे ये डिपेंड होता है वेटेड एवरेज ऑफ द प्राइस रिलेटिव मेथड। इसमें हमें क्या करना है, पहला स्टेप है आपका प्राइस रिलेटिव फॉर द करेंट ईयर। करेंट ईयर की जो भी प्राइस है उसको हम करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। करेंट ईयर की कैसे निकलेगा, आर और दी प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव को हम लोग आर से भी डिनोट कर सकते हैं, आर और पी आर से, विच इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 क्या है, प्राइस ऑफ द करेंट ईयर डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ द बेस ईयर इंटू 100, सो दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ द PR, हमें PR मिल जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कैलकुलेट वेट्स। अगर क्वेश्चन में आपके वेट दिया होगा, मतलब W ऑलरेडी गिवन है, तो हमें कैलकुलेट नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। वेट को कैलकुलेट करने के लिए इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइस ऑफ द बेस ईयर एंड द क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर। So what we have to do, we have to multiply the price of the base year to the and the price of the quantity of the base year। प्राइस और क्वांटिटी जो भी बेस ईयर का आपके पास क्वेश्चन में P1, P0, Q0, ये सारा क्या बोलते हैं आइटम सारे गिवन होंगे। आपको बस यहाँ पे आप P1 अपॉन P0 करके कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करोगे P0 और Q0 का, so that we get the value of the W। हम W की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट ऑफ द रिलेटिव एंड वेट्स। अब जैसे हमें W मिल गया, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हम प्रोडक्ट किसका फाइंड आउट करेंगे, रिलेटिव और प्राइस रिलेटिव और वेट का, मतलब RW फाइंड आउट करेंगे। कैसे, R हमारे पास यहाँ से मिल गया, W हमको यहाँ से मिल गया, तो ये कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे ही हमारी सारी R और W हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, सो दैट वी कैलकुलेट दी समेशन RW। तो जितना भी RW वैल्यूज आया, जितने भी कॉमोडिटी का, उसको हम सम करके समेशन RW कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है आपका सम टोटल ऑफ वेट। अब जो भी वेट्स हमने कैलकुलेट किया था बाई P0 एंड Q0, हम उसको क्या करेंगे, समेशन वेट कर लेंगे, उसका वेट करके वैल्यू निकाल लेंगे। फिर जो हमारा फॉर्मूला है वेटेड एवरेज ऑफ द प्राइस रिलेटिव मेथड का, दैट इज P01 इक्वल टू समेशन RW अपॉन समेशन W। इससे हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे किसकी वैल्यू, वेटेड एवरेज ऑफ द प्राइस रिलेटिव मेथड। Okay, next we will do some numerical questions related to the weighted average of the price relative method. Okay. So few examples are given there, as well as there are also some questions given in the exercise. Okay. So the question is here, calculate the index number by the weighted average of the price relative method. Okay. Calculate index. It is too much wet. Index number by weighted average of price relative method. Okay, so question is here, commodity 2000 2010,
Q0, P0 and P1. It is given here. Commodity is A, B, C, D, E, F. Okay, till the F it is given. So you have to write quantity. So 2000 here, the 2000 is the base year and 2010 is the current year. So quantity and the price of the base year is given and the price of the current year is given. Okay. So quantity is 80, 70, 60, 50, 40 and 30. Price is 4, 8, 12, 4, 2, 3. Price of the current year is 8, 14, 18, 5, 5 and 6. First of all, you have to calculate the PR. PR और R. इसका फॉर्मूला क्या है? P1 upon P0 into 100. ठीक है, फिर हम क्या निकालेंगे इसके बाद? पहले हम P और PR और R निकालेंगे एंड आफ्टर दैट हम इसमें W निकालेंगे. फिर हम क्या निकालेंगे? RW. ओके, तो हमें यहाँ पे PR और R निकालना है, W निकालना है और RW निकालना है. तो फॉर्मूला आपका W का क्या था बताइए? P0 Q0. ठीक है, तो P0 और Q0 करिए, इसको मल्टीप्लिकेशन करिए. 32 720 5 4 जा 200 4 2 80 90. ठीक है, 320 560 720 200 80 90. समेशन W यहाँ पे निकालेंगे. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हमें निकालना है प्राइस रिलेटिव और द रिलेटिव. तो P1 अपॉन P0. P यहाँ पे क्या है? P यहाँ पे क्या है? P1 क्या है? 8 अपॉन 4 इंटू 100. कैलकुलेट करिए, आप लोग कैलकुलेट करते चलिए. फिर यहाँ पे 14 अपॉन 8 इंटू 100. देन 18 अपॉन 12 इंटू 100. 5 upon 4 into 100, then 5 upon 2 into 100, 6 upon 3 into 100. ये कैलकुलेट करिए, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए, क्या आ रहा है? ठीक है, ये आपका आ गया 4 2 जा 8 200. ठीक है, 2 4 जा 8 2 7 जा 14 4 2 जा 8 7 25. ये हो गया आपका 175. ये होगा आपका 150. ये हो गया आपका 25. देन 125 15 5 5 जा 25 250. ठीक है, 3 2 जा 6 इक्वल टू 3. अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है? इसकी तो कोई वैल्यू जरूरत नहीं है हमें. ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? RW. RW मीन्स इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन करिए, मतलब 320 इंटू 200. ठीक है, 320 इंटू 200 175 इंटू 560 150 इंटू 720 125 इंटू 200 250 इंटू 80 200 इंटू 90. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो RW की वैल्यू आ रही है 64,000. नेक्स्ट है आपका 98,000. नेक्स्ट है आपका 108. नेक्स्ट वन इज 25,000 20,000 और 18,000. समेशन RW निकाले, क्या आएगा? और समेशन W. तो समेशन W आपका वैल्यू आएगी 1970. ठीक है, फिर समेशन RW आ रहा है आपका 3,33,000. ठीक है, 3,33,000.
इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे P01 इक्वल टू समीशन RW समीशन W। ठीक है, RW आपका आ रहा है 1970। ठीक है, इसको कैलकुलेट करिए क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 169.03। देन P01 इक्वल टू 169.03। ये था आपका वेटेड एवरेज ऑफ द प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, एक बार इसको देखिए क्या हो रहा है, तब हम लोग इसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपके पास क्या क्या दिया हुआ था। आपके पास क्वेश्चन में Q0 P0 P1 दिया हुआ था, जिसमें हमें P और प्राइस रिलेटिव निकालना था। उसका फॉर्मूला क्या था, P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 आपके पास था, P0 था इंटू 100, हम ये निकाल लेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे W निकालना था। W को कैसे कैलकुलेट करना था, वेट को P0 मल्टीप्लीकेशन ऑफ P0 एंड Q0। तो हम इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ, फिर समीशन W निकालेंगे इसको सम करके। एंड देन RW हमें कैसे कैलकुलेट करना है, RW के लिए हमें R प्राइस रिलेटिव इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ W सम करेंगे। देन फॉर्मूला इसका प्राइस इंडेक्स नंबर का क्या है, P01 इक्वल टू समीशन RW अपॉन समीशन W करेंगे, इसको डिवाइड करके तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 169.03।